Hey everyone, a very warm welcome to the channel Literature by Ankita. So yes, this is another short story video about No Room for Leopard by Ruskin Bond. So as usual, I would like to say this is also a very good work. And let's begin without any further ado. So what is no room for leopard? Let me give you a hint for this actually. So no room for leopard means, oh, it is very familiar to us because अब देखो जो जो जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं और हम सिटीज़ में रहते हैं या विलेजेस में रहते हैं। अगर हम लोग अपनी ही डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को, जंगलों को काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जिससे किसी को परेशानी हो रही है। इनडायरेक्टली परेशानी तो हमें भी हो रही है बिकॉज़ जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो लोग हमारे लिए भी वो चीज़ें हमारे लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने एनिमल्स का वो घर भी है। मतलब हम लोगों ने तो अपने घर बना लिए जो कि पत्थर से बन गए हैं या लकड़ी से बन गए हैं। इन एनिमल्स का तो रियल जो हाउस होता है वो तो वही होता है ना। तो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स बेसिकली। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नो रूम फॉर लेपर्ड बाय रुस्किन बॉन्ड इज अ कैप्टिवेटिंग टेल सेट इन द हार्ट ऑफ द इंडियन वाइल्डनेस। द स्टोरी अनफोल्ड थ्रू द eyes of a young boy who lives in a small village nestled amidst lush forest. The boy develops a deep connection with the natural world, often venturing into the wood to explore. One of these executions that he encounters a majestic leopard, a creature that becomes a symbol of the untamed beauty and mystery of the forest. As the boy and the leopard become increasingly familiar with each other, a bond forms between them. The boy watches him awe as the leopard hunts, plays and rests in the forest. He witnesses the leopard's grace, strength, and intelligence and feels a profound respect for this magnificent creature. However, the boy's idyllic world is threatened by the encroaching forces of human civilization. Deforestation, urbanization, other human activities are slowly destroying the leopard's habitat. Forcing him to adapt to a changing environment, the boy becomes increasingly concerned for the leopard's safety. As its territory shrinks and its food source dwindle, the story explores the delicate balance between humans and the natural world, highlighting the importance of preserving wildlife habitats and respecting the rights of all creatures. Through the lens of the boy's relationship with the leopard, Bond offers a poignant commentary on the consequences of human greed and influence. No Room for Leopard is a timeless tale that resonates with the readers of all ages. It is a reminder of the beauty of fragility of the natural world and a call to action to protect it for future generation. So that was about introduction. Actually introduction is saying here that No Room for Leopard is a work by Ruskin Bond जिसमें उन्होंने एक वाइल्डनेस दिखाया है इंडियन के बारे में. Exactly the story is all about Indians, so we will relate it by Indians. ठीक है. द स्टोरी स्टार्ट होती है विद अ यंग बॉयज़ आई. मतलब जो नरेटर है इस स्टोरी का वो है एक यंग बॉय. नहीं बताया गया कि वो कितनी एज का है, नहीं बताया गया वो क्या करता है, नहीं बताया गया उसका नाम क्या है. सो ओनली बताया गया कि नरेटर इज़ अ यंग बॉय जो कि ना नॉर्मली जंगल जाना पसंद करता है और जानवरों से दोस्ती करना पसंद करता है. तो स्टार्टिंग में तो जानवरों से डरते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सब चीज़. लेकिन धीरे धीरे वो उससे इस यंग बॉय से, नरेटर से फेमिलियर हो जाते हैं, जिससे जो जंगल के जानवर हैं वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज ही ऑल्सो लाइक देम. ठीक है. तो ये बताया गया है. तो क्योंकि जो यंग बॉय है वो काफ़ी डीप कनेक्शन डेवलप कर लेता है उन एनिमल्स के साथ में. ठीक है. लेकिन इसके साथ ये भी दिखाया गया है जैसे वो यंग बॉय अच्छा है या फिर वो जंगल जाता है टू शो लव टू ऑल ऑफ देम, बट इट डजंट मीन कि सभी लोग ऐसे होते हैं. अभी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एनिमल्स हैव नॉट दैट मच ब्रेन फॉर दिस टू अंडरस्टैंड अबाउट पीपल्स ग्रीड, राइट. अभी यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं जो यंग बॉय है वो जाना पसंद करता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो लव टू देम, बट
यहाँ पर कुछ अलग लोग भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल शिकारी, हंट मैन। वाई? बिकॉज शिकारी जब जाते हैं ना, अब देखो यंग मैन वहाँ जाता है तो एनिमल्स थिंक कि जो सब लोग सब ह्यूमन होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, अच्छे होते हैं। बट जो शिकारी जब आते हैं, लेपर्ड, जो लेपर्ड की यहाँ पे बात करी गई है, वो लेपर्ड फेमिलियर हो जाता है हमारे यंग मैन के पास में, क्योंकि वो जो यंग मैन है वो सबसे मिलता है, सबसे प्यार करता है। अब देखो पहली बात लेपर्ड की बात में मैं बताऊँ आपको, जो लेपर्ड है वो उसकी जो स्किन है और जब उसकी ख़रीदारी करी जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही ना एक्सपेंसिव जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो शिकारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेपर्ड को हंट करते हैं। ये एक पॉइंट है इसके लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो जंगल हमने ख़त्म कर दिए हमारे खुद के फ़ायदे के लिए, तो अभी लेपर्ड के पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, तो उनका घर और हमारा घर बहुत ही पास में आ गया है। तो कभी कभी हमने देखा भी होता है कि जो लेपर्ड है या जो टाइगर है वो सिटीज़ में आ गए। अब कितने बार ना कैमरे में कैप्चर होता है कि ये इधर जा रहा है, वो उसके घर में चला गया, वहाँ बच्चे ने ऐसे गेट बंद कर दिया, या फिर किसी पर अटैक हो गया। तो देखो उनमें उनकी गलती नहीं है। अगर हम ही उनके घरों में घुस जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? सो इसमें ऐसा है ही नहीं कि ये सोचा जा रहा है यार ये तो सिटी में आ गए। नहीं, वो सिटी में नहीं आए, सिटी जंगलों में चली गई है। गॉट इट? बट आई एम ट्राइंग टू से हियर it is that greediness in our society basically। अब आप लोग मुझसे ये बोलेंगे कि अगर फिर हम लोग जंगल नहीं काटेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमें भी तो डेवलप होना है, इसका मतलब कि डेवलपमेंट गलत होता है? नहीं, डेवलपमेंट गलत नहीं है, कभी भी नहीं है, लेकिन हम डेवलप तो हो रहे हैं। बट ह्यूमन में ना एक चीज़ होती है अपने बारे में सोचने वाली। स्टोरी में यही चीज़ दिखाई गई है कि बैलेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन। दूसरी चीज़ नेचुरल वर्ल्ड का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी स्टोरी में, ठीक है, और रिलेशनशिप विद पीपल एंड एनिमल्स ऑब्वियसली, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन ग्रीड। यानी कि देखो आप सिंपल सी बात अभी मैंने बोला, जैसे कि दिन ब दिन ह्यूमन की ग्रीड बढ़ती जा रही है। हम लोग ही क्या कर रहे हैं, हम लोग ना हमने सब कुछ ले लिया है, लेकिन हम उनको कुछ देना नहीं चाहते हैं। एक बहुत ज़्यादा ना वायरल पिक्चर है ये, मतलब फ़ोटोग्राफ है, मीम है, दैट इज़ कि एक सामने इंसान खड़ा है और उसके हाथ ऐसे पीछे हैं और उसमें है कुल्हाड़ी एक्स, ठीक है, और सामने ही जो पेड़ है वो भी है और उसके हाथ पीछे है और उसमें है गोंद, लकड़ी तो है ही खैर, ठीक है, फल, शेडो और बहुत सारी चीज़ जो हमें पेड़ों से मिलती है बेसिकली, बहुत सारी अनकाउंटेबल वो है। तो देखो ये रियलिटी है ह्यूमन की। अभी पेड़ हमें कितना कुछ दे रहा है, जबकि पता है हमें कि वो बोलता नहीं है, वो उससे वो प्यार व्यार थोड़ी ना हम इतना समझ सकते, वो समझ सकता है नहीं ना। जो ब्रेन ह्यूमन के पास है थोड़ी ना पेड़ों के पास, वो एक सिर्फ लिविंग थिंग है जो सांस ले रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, वो भी हमें दे ही रहा है। देखो ऑक्सीजन भी हमें दे ही रहा है ना। लेकिन हम एज अ ह्यूमन वी आर जस्ट सेल्फिश टू देम। हम में से कोई भी, हमसे कितनी भी बात कर ले, हमसे किसी भी टॉपिक पर बात कर ले, बट दिस इज़ रियलिटी, वी हैव नेवर एवर, मतलब हम लोगों ने कभी पेड़ नहीं लगाए हैं। हम लोग बोलते हैं इस चीज़ के लिए हम ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट हमने नहीं किया है। चलो ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की, क्योंकि इन बातों को करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन एनरोचमेंट। एनरोचमेंट का मीनिंग होता है यहाँ पे वो एक ऐसी चीज़, मतलब कि जहाँ हम नेचर में घुसते चले जाते हैं ना नुकसान करने के लिए, सो इट्स अ नेगेटिव वर्ड, एनरोचमेंट, ठीक है। द स्टोरी हाईलाइट्स द डिवास्टेटिंग impact of human activities such as deforestation and urbanization on wildlife habitats। तो यहाँ पे यही हाईलाइट किया गया है कि हम लोग कैसे जंगलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है, कैसे वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स को ख़त्म कर रहे हैं। लॉस ऑफ हैबिटाट। द लेपर्ड्स टेरिटरी इज़ श्रिंकिंग ड्यू टू ह्यूमन एनक्रोचमेंट लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन इट्स फूड सोर्सेज एंड ओवरऑल वेल बीइंग। जैसे हमने अभी ऊपर बात किया, सेम यहीं पे है कि जैसे हमने क्या किया है, हमने उनकी जगहों को श्रिंक कर दिया है, छोटा कर दिया है, ठीक है, और हम उनकी जगहों पर घुस गए और जिसकी वजह से फूड रिसोर्सेज और सब चीज़ उन लोगों के लिए, यानी कि एनिमल्स के लिए बहुत कम हो गया है।
boy leopard bond. A young boy forms a deep connection with the leopard, fostering a sense of empathy and understanding for the animal. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक नरेटर दिखाया हुआ है यंग बॉय, जिसका डीप कनेक्शन दिखाया गया है लेपर्ड के साथ में, जिस कनेक्शन की वजह से ही उस लेपर्ड की जान चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंस ऑफ एम्पैथी भी शो किया हुआ है। Conservation message. The story emphasizes the importance of preserving natural habitats and respecting the rights of all creatures. स्टोरी का क्या मैसेज है? स्टोरी का मैसेज यही है कि हम लोग अपने घरों की रक्षा करते हैं ना, सेम हमें उन नेचुरल हैबिटाट्स की भी रक्षा करनी चाहिए, यानी कि हमें उन लोगों को भी थोड़ा तो स्पेस एटलीस्ट देना ही चाहिए ना। वो है poignant commentary. Bond offers a thought-provoking exploration of the consequences of human greed and indifference towards the environment. बोन दिखाया गया है, ऐसी थॉट को प्रोवोक किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है, कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए गए हैं ह्यूमन ग्रीड के बारे में। ठीक है, टाइमलेस थीम. The tale resonates with readers of all ages, reminding us of the beauty and fragility of the natural world. So टाइमलेस थीम क्या यूज़ हुआ है, जिसमें हमें मैं कहना चाहूँगी कि हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसकी ब्यूटी को दिखाया हुआ है, ये थीम यूज़ हुई है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट हियर? नैरेटिव स्टाइल की बात कर लेते हैं। First person perspective. Bond employs a first person narrative, allowing reader to experience the show through the eyes of the young boy. This perspective provides a sense of intimacy and allow the reader to connect with the boy's emotion and experience. First person narration यूज़ हुआ है, first person perspective, because उसके थ्रू हम देख पाए हैं कि जो यंग बॉय है वो किस तरीके से उस वाइल्ड लाइफ को देखता है, या क्या इमोशंस है उसके, जिससे हम जिनकी रीडर्स उससे कनेक्ट कर सके। ठीक है, दूसरा अगर हम बात कर ले तो लैंग्वेज. Ruskin Bond is known for his vivid and evocative descriptions of the natural world. Paints a picture of the forests, the majestic leopard and boy's village, creating a rich and immersive setting. तो क्या यहाँ पे बताया गया है? एक लव लैंग्वेज यूज़ हुई है, एक एम्पैथी यानी कि एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई। एक ऐसी पिक्चर पेंट करी गई है जिसमें वो जो गांव का लड़का है वो और लेपर्ड के बीच में कनेक्शन दिखाया है। ठीक है, एक ऐसी सेटिंग बनाई गई है। सिंबलिज्म क्या है? द लेपर्ड सर्व एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ द अनटेम्ड ब्यूटी एंड रेजिलेंस ऑफ नेचर. इट प्रेजेंट्स इन द स्टोरी रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट. भाई देखो, सीधी सीधी बात है, अगर हम लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो सिंबल उसका यूज़ किया है, बावजूद उसके भी उसकी जो ब्यूटी दिखाई हुई है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंस दिखाया है हैबिटेट को सेव करने के लिए. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी अराइजेज फ्रॉम द टेंशन बिटवीन द बॉयज डिजायर टू प्रोटेक्ट द लेपर्ड एंड द एनरोचिंग फोर्सेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. दिस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड सस्पेंस. तो जैसे मैंने बताया, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया बिटवीन बॉय का जो डिज़ायर है, जो लव है लेपर्ड के लिए, और जो शिकारियों का ग्रीड है वो. ठीक है, जो कि एक अलग ही सस्पेंस क्रिएट करता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है. रिजोल्यूशन क्या दिया है? वाइल द स्टोरी डज नॉट ऑफर अ डेफिनेटिव रिजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, इट सर्व एज अ cautionary tale about the consequences of human action. The boy's growing awareness of the leopard's plight and the threat it experiences. ठीक है, so that is all about for today everyone. That was about No Room for Leopard. Basically we got to know what does the title mean. No room for leopard, that means कि there is no place for animals, as we are increasing our lives into the jungle as well, but there is no room for leopard. So that is all about for today. And what do you think about the story? What do you think about humans greediness? Comment below. And yes, like the video, subscribe the channel, and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.